Hello students, how are you? So I am here again to represent another online class of current electricity, and that is module 10. So let us start. In the previous lecture we were discussing about combination of cells and we have studied cells in series. But in this module we will study about cells in parallel. So let us start. Dear students, cells in parallel. नॉन आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है। हम इसमें नॉन आइडेंटिकल सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनको पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा सेल्स इन पैरेलल के लिए सबसे पहली चीज, लेट अस कंसीडर टू सेल्स हैविंग ईएमएफ E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2. They have different resistance because they are non-identical cells. Now, this is positive, negative, and positive is connect with positive, and negative is connect with negative. This is the rule to connect in parallel. First cell current I1, बिल्कुल I1, and second also current I2. This is, and the overall current I. This is junction. Terminal A, terminal B. Now, because they are connected in parallel, and we know very well when anything you can say resistance, capacitance, capacitor, when they are connected in parallel, potential difference remains constant, and in series charge or current remains constant. Now, so for cell first VAB, V पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा, इसलिए बेटा हम यहां पर यूज कर सकते हैं VAB इज इक्वल टू V, दैट इज इक्वल क्या बनेगा, रिलेशन क्या है, V is equal to E minus IR. We know about this relation. Now, that is the EMF of first cell, that is E1 minus current in first cell I1 and resistance R1. Only V same, right? Equation first. For second cell, V is equal to E2 minus I2 R2, that is also VAB, no difference. Equation second, using relation, but the current is different. That current is different. So, you know, I is equal to I1 plus I2 in this relation, because I is the combination of two currents. अब जो टोटल करंट हमारे पास I है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ I1 प्लस I2. इसके बाद इसमें अगर यहां से हम I1 की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा, ये इसको हम यहां पूरा लिख देते हैं. इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या बन जाती है इक्वेशन फर्स्ट, I1 R1 उधर जाके प्लस का E1 माइनस V, राइट, I1 R1 E1 माइनस V, देन I1 इज इक्वल टू E1 बाय R1 माइनस V बाय R1. मैंने दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया R1. इक्वेशन थर्ड, सिमिलरली I2 becomes, क्या बन जाता है I2, E2 R2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन 4. बिल्कुल ऐसे ही बनेगा सिमिलरली, राइट. तो उसके बाद जो नेक्स्ट वी नो टोटल I इज इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2, बिकॉज I टोटल करंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द करंट, दैट इज I1 प्लस I2. नाउ एडिंग दिस इक्वेशंस, E1 R1 प्लस E2 R2, मैंने E1 E वाली टर्म को इकट्ठा ऐड कर दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया मैंने,
V ले लेता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। मैंने इतना कर दिया, मैंने I की वैल्यू निकाल दी, बट वी विल हैव टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन बिकॉज दिस रिलेशन V इज इक्वल टू E माइनस IR। इस रिलेशन का यूज करेंगे तो हमें एक साइड में V चाहिए, तो अब क्या करें, इसको उधर ले जाओ, V इसका एलसीएम लो, R1 R2 that is R2 plus R1 here, E1 again taking LCM here also, R1 R2 that is E1 R2 plus E2 R1 minus I. Yes, this is the relation because V in this side becomes positive and this is same. Taking LCM R1 R2, R2 is multiplied with E1 and R1 is multiplied with E2, right? And I is here minus because we have brought it from the left hand side, right? Now V is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2 as it is, but this term becomes multiply in this side after reversing R2 plus, sorry क्या कर दिया, यहाँ पे आके रिवर्स हो जाएगा, ऊपर R1 R2 नीचे R2 प्लस R1 माइनस I R1 R2 upon R2 plus R1. R1 R2 is cancelled from R1 R2 now. V is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R2 plus R1 minus I R1 R2 upon R2 plus R1. Right, this is the relation. Now is clear or not? Yes, it is. Now comparing with the equation, अब हम इसको इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे। सो यहां तक एक बार दोबारा मैं आपको रिकैप्चुलेट करा देता हूं बिकॉज फिर मैं उस साइड को रफ कर दूंगा, राइट। सो क्या है, सिंपल सी बात है, when they are connected in parallel, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड। फर्स्ट सेल के लिए V इज इक्वल टू E माइनस IR, V इज इक्वल टू E माइनस IR, जस्ट रिलेशन, एंड I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सो मैं अगेन यहां पे लिखता हूं, उसके बाद फिर कंपेयरिंग विद इक्वेशन, V इज इक्वल टू E माइनस IR। सो E इक्विवेलेंट किसके आ गया, देखो V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो E की जगह क्या है, दैट इज E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1, R इसके इक्विवेलेंट होगा। सो यहां पर अगर सिंपल सी बात है, ये वैसे पैरेलल के लिए होता है, क्यों, देखो 1/R इक्विवेलेंट होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम ले R1 R2, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाके R2 प्लस R1 पलट देंगे तो वही बनना है, ठीक है। एंड दिस इज कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल। अब ये हमने किसके लिए किया, हमने किया ये नॉन आइडेंटिकल सेल्स के लिए। अगर हम यहां पे बात करें आइडेंटिकल सेल्स, फॉर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब सेम, मतलब E सेम होगा, R भी सेम होगा, तो E इक्विवेलेंट क्या बनेगा, यहां पर ER प्लस ER अपॉन 2R, R प्लस R, तो ये 2ER अपॉन 2R, तो पैरेलल में ही कभी चेंज ही नहीं होती, वही ईएमएफ रहेगी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ सेल्स इन पैरेलल। Perhaps it is clear to all, right? Very simple topic. Now
किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने 2 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ, we will CL means करंट लॉ। तो जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था CL एंड सेकंड लॉ था VL, वोल्टेज लॉ। तो अगर हम बात करें करंट लॉ की, तो किरचॉफ्स का बेटा करंट लॉ क्या है? राइट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, the algebraic sum of all the currents meeting at a junction is always zero, means summation I that is equal to zero, means सारे के सारे जो करंट का एल्जेब्रिक सम होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ वो क्या होगा? जीरो। और यू कैन से द सम ऑफ करंट एंटरिंग टूवर्ड्स जंक्शन is equal to sum of currents leaving the junction। जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। मैंने डेफिनेशन लिख दी, अब पता तो होना चाहिए आपको कि जंक्शन क्या होता है। कि मैंने लिख तो दिया बट पता भी होना चाहिए कि जंक्शन किस चीज का नाम है। एक चीज देखो, ये वायर है, खाली एक ही लाइन है। जब इसमें से एक और अलग से कोई कनेक्शन, मतलब 3 जगह कनेक्शन चला जाए कम से कम, ये राइट। सो दिस इज जंक्शन। क्योंकि देखो पहले सोनीपत का रेलवे स्टेशन रेलवे टर्मिनल था, लेकिन एक जैसे जींद वाली अलग से लाइन लगी ना, तो उसको क्या कहते हैं? रेलवे जंक्शन। तो सिमिलरली ये भी ऐसे जंक्शन है। मींस एक सिंपल वायर, उसमें से कोई एक वायर ऐड कर दे तो ये क्या बन गया? जंक्शन। अब 3 कर बन गए भी, एक ही साइड और एक ही साइड, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन। अब इसने क्या कहा? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इस पॉइंट पे सारे के सारे मैंने 5 वायर्स कनेक्ट कर दिए, तो ये वायर क्या कहलाएगा? यहां पर जाए, बीच में पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन एंड दिस करंट इज नेम I1, दिस करंट नेम I2, दिस करंट नेम I3, दिस नेम I4, दिस नेम I5। बेटा डायरेक्शन तो इनमें उल्टा भी देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जंक्शन कोई करंट थोड़ा रखता अपने पास, तो करंट को आगे पास करता है, राइट। तो मैंने क्या कहा? इन सारे के सारे करंट का एल्जेब्रिक सम दैट इज जीरो। अब I1 प्लस I2 प्लस I3, दीज आर द करंट लिविंग एंटरिंग टुवर्ड द जंक्शन। I1, I2 और I3 ये किसकी तरफ जा रहे हैं? जंक्शन की तरफ। और I4 और I5 जंक्शन को छोड़कर जा रहे हैं। द सम ऑफ करंट एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लिविंग द जंक्शन। तो जंक्शन को जो छोड़ते हैं उनके इक्वल जो जंक्शन की तरफ आते हैं, सबका सम क्या होता है? सेम। और यू कैन से I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। सो बेटा ये है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। क्या है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ? दैट इज करंट लॉ। और करंट लॉ क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the current meeting at a junction is always zero, right? So perhaps it is clear to all। ठीक है, तो बेटा थैंक यू। We will discuss Kirchhoff's second law in the next module। Thank you, have a nice day।